चार नहीं 40 भी लगा देंगे यहाँ मीटर क्या 속상하다. 속상하다. 하려면 불화를 속상하는 इसके बाद सर हमारे ऑनरेबल काउंसलर के लिए इसके बाद इसका हाँ मुझे सोनी पड़ी मैडम रोक्सेना मैडम के लिए day on every year March 3rd since then. So the theme every year the UN they keep one theme for the wildlife day, and this year theme is basically partnership for the wildlife conservation. So basically there are many UN conventions, there are many legal acts. In India we have the Wildlife Protection Act, and there is like Indian Forest Act, and there are many legal things to protect the wildlife of India, of the world. But we cannot prevent damage to wildlife until or unless we have the contribution from the society in large. So that's why the theme for this year is partnership for the wildlife conservation. So for example, how individuals can contribute, how you all can contribute to protect the flora and fauna of the Ladakh. So you can just take the simple basic steps. Legal smuggling of any local flora and fauna, you can just inform the local police or the forest or the wildlife department. You can plant a tree, and not just planting, you can have like you don't use plastics in your day-to-day life. You can just have a cloth bag for your grocery shopping and all these things. So this is how one individual can contribute to conserve the wildlife. So that is the theme for this year, the partnership for the wildlife conservation, how the local people,
how the citizens of this country, they can contribute to conserve the flora and fauna of the world and India and the Ladakh specifically. So basically, we have the experts from the Wildlife Conservation Board who will be speaking in detail about the गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट अकेला भी कुछ नहीं कर सकता है. जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, आने वाला फ्यूचर आप लोगों का ही रहता है, तो जितना हो सके वाइल्ड लाइफ को जानने की बहुत ज़रूरत है. वाइल्ड लाइफ एक ऐसा चीज़ होता है कि जब हम इकोनॉमिक फैक्टर की तरफ हम दौड़ने लगते हैं तो वाइल्ड लाइफ पीछे रह जाता है. तो वाइल्ड लाइफ एक तो दूर होता है, हमारे जहाँ इनहेबिटेंट्स होता है वहाँ से दूर होता है, तो वाइल्ड लाइफ नेचर वही होता है. लेकिन हमारे लद्दाख में पोचिंग तो बहुत होता ही होता है, और पोचिंग इस तरह की होता है कि वाइल्ड लाइफ दूर होने के कारण पोचिंग जो करने जाता है, वो जब पोचिंग करने जाता है वहाँ कोई नहीं होता है, वो पोचिंग करने वाले ही होता है, बाकी लोग दूसरे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में वो ध्यान रखते हैं. तो पोचिंग जब करता है तो उसको पता ही नहीं लगता कि मैं अकेला ही हूँ पोचिंग. लेकिन पोचिंग एक ऐसी चीज़ है वाइल्ड लाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान देता है. और सबसे ज़्यादा मुझे अगर परसेंटेज पे देखा जाए तो लद्दाख में अगर 2 पोचिंग भी हुआ तो बहुत वो डेंजरस चीज़ होता है मेरे हिसाब से. शायद वसुधा जी को ज़्यादा पता होगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस थिंग ना. सो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को, आप सभी को यहाँ बताने के लिए स्पेशल स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच. Matang mijas de zambuling na rangjini na jaji u semchan dapchak jot kan mun lar kangal yons de fon e tanska u nyun jot ka ngata sa de zeto ngata just de fon sachawi ka tukspa sonte noskial sonte kon tanska metkan chedo yangata man ergus meda kon ngata notskalet ka skot pasan drin jak kon ngata sangmi itu school cheski ngata yotkani risemchan chachi u tenetena tsoglas changdong flora fauna jomidole sangmas kyopchesi te itu school te ngatana commitment choches ngatana khacha chochesi jakchigino skot pa la chachi u tanska tsamshi ka juna no mon chochon la juna yagal danika yagarma zamlingina sacha chinmoji yalka ma chinmoji chigino utun par geptek yagarina stong chigna hapier tukchi ka chachi u ngata ladakh chikpena he lenan kargil district niskena tene i tanska or jipgya angishu songba sang ge gyapna sumchu tsospo yagal kani chachi tanska lagla on tamingun pilogna on kan indo yamon pujiga tukis met kanun halasono kije chachi gona risem chan kana thono yotik duk miru nyeje na pema duk dak duk ri duk chang duk miru life duk miru phala izu tiwayon duk phala आप लोग खाते क्या हो जिस तरह खचीस मेज़ पर रीना डाल यो पेमा यो रुकुन लाते ने कर दो जिस पार सुमा को तेने हा गोरु की ngata इजुक्शमेन क्या इसके ऊपर तेने इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लोग गरम सा जुना इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना यलखक और दुनिया का ngata चंगचोक ना क्यों ना तेने भूटान गाँव ngata डुकजु नेपाल तेरे पायुल जुट ngata तेरे ngata बांग्लादेश तेने यगारी जुग आज क्यों नहीं पो श्रीलंका तेरे मालदीव्स यंग कंट्री जी खाले तेरे पाकिस्तान गाती खिमसेस पा जाओ जुना गजु जुना ये यूल दुन पा तेने यगार आमा ये यूल दुन के नाम को आचार जीवित ट्रांसका ओस्टों चिकना गापिया थाल जिग में मिरो decade back I came to know this Denmo means Bhalu Sirkan. So that is why the first and most important thing is to let people know what kind of wildlife, flora or fauna is present in Ladakh. जैसे आप हमारे बर्ड क्लब के जो एग्जीबिशन को देखे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हमने लोगों को जैसे ऑब्जर्व किया तो लोग भी कहते हैं अरे ये भी होता है ये भी होता है. सो ये इन्फॉर्मेशन लोगों में होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन हम किस चीज़ को प्रिजर्व करें. एक प्रिजर्व या प्रोटेक्शन का एक नेचर है. कभी वेस्टर्न कल्चर को हम प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के बारे में बात नहीं करते हैं. आप किसी आज कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी अपने स्कूल के स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में कभी सुना कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो कहीं पे वेस्टर्न कल्चर को खतरा है, वेस्टर्न कल्चर को प्रोटेक्ट करो, प्रिजर्व करो? सुना किसी ने? नहीं. क्योंकि हम इस चीज़ से कनेक्ट हैं, हम इस चीज़ को जीते हैं, हम इस चीज़ में रहते हैं. तो आज यहाँ पे देखिए हम ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में बैठे हुए हैं. वाई वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस वेस्टर्न कल्चर. Commemorate
the day of signature of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in 1973. The theme of 2023 is Partnerships for Wildlife Conservation. World Wildlife Day celebrates the beautiful and varied form of wild fauna and flora, and to raise awareness of the multitude of benefits that their conservation provides to people. At the same time, World Wildlife Day reminds us for the urgent needs to stabilize the fight against wildlife crime and human-induced reduction of species, which have wide-ranging economic, environmental, and social impacts. Growing anthropogenic activities have led to the destruction of wildlife. So there is an urgent need for the conservation of wildlife. Wildlife conservation is an issue that requires a concerted efforts from all of us. And building partnership has come up with an essential aspect in wildlife conservation. By working together, we can achieve greater success in protecting and conserving our planet's wildlife. Cooperation between governments and non-governmental organizations. समझ सकते हैं कि हम कितना रीच है. तो हमारा पहाड़ यहाँ बिल्कुल वर्ल्ड लाइफ से ऑर्नामेंटेड है. ये हमारा सर बोल रहे थे कि बैरन है. अगर हम अच्छी तरह से डिटेल में जाएं तो ये बैरन नहीं है, इसमें हर प्रकार के वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा है. तो हम बहुत रिचनेस है. तो केवल ज़रूरत क्या है, तो इसके विषय के बारे में हम पढ़ना है ताकि लोगों को बता सकते हैं. तो थैंक यू काले. तो आगे हम ने सीधा जानवर पे ही उस पे लादना शुरू कर दिया. तो आज हम ये कोशिश करें कि उनकी तरफ हमारी जो भी एक्टिविटी होती है उनको थोड़ा फ्रीडमली उनको जीने का मौका दें. न सिर्फ हम जानवरों के लिए बल्कि हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी हिफाजत करना उतनी ही ज़रूरी है जितने हम जानवरों की करते हैं, क्योंकि उनके खुराक डायरेक्टली इन्हीं पे डिपेंड है. जो हमारे वनस्पति है, जो हमारे घास हैं, जो चरागाह हैं, उनकी भी हम रिस्पेक्ट करें. वो डायरेक्टली हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो आज यहाँ पे थीम इस साल का हमें पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखा है. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे के दिन हम ये तय करें कि हम आज से एक रेजोल्यूशन लें कि आने वाले दिनों में लद्दाख, जिस तरह से हम कहते हैं कि फ्रेजाइल इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में हम अपना योगदान दें, हम अपना रोल निभाएं. जो आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, आपके पीछे ये पौंड है, ये जो है माइग्रेटरी बर्ड जो बाहर से आते हैं, सबरिन इलाके से आके कुछ दिन यहाँ बिताते हैं. सिर्फ हम उन्हें होस्ट करते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए. मैं गलत ना हूँ तो यशोदा साहब आपको अच्छे से कहेंगे. तो ये हफ्ता भर जो है हम उनकी इज्जत से उनको जीने दें ताकि अपनी नई नस्ल के लिए और अपनी नई जो ज़िंदगी के लिए ये दूर साइबेरियन जैसी सरहद इलाके में जाते हैं तो इस रास्ते को हम डिस्टर्ब न करें. उन्हें जो हमारे आसपास में मंडलाते जो बीज हैं, ये भी हमारे खुराक का जरिया है. जब हम इतने आगे गए हैं तो हम देखते हैं कि इनके ज़रिए से भी हमारे खुराक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ये पोलिनेशन को आगे पीछे ले जाते हैं, चाहे कुछ हवा की तरफ से खाते हैं और ऊपर पहाड़ों पे जब वो बैठते हैं और अपना मल छोड़ता है और हल्के से पानी से वहाँ पे वो पेड़ शुरू. हमारा सदियों जो हमारा फ्यूचर है, हम इंसान ये देखते हैं कि हमारे जो 70 साल का एवरेज है, हम चाहते हैं कि मेरा 70 साल कैसे गुजारे, न कि हम ये सोचते हैं कि 700 साल कैसे गुजारें. इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है. और हम ये भी जानें कि आज हम साइंटिफिक दौर पे, लेकिन हमारे जो पुराने थे उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा था, बल्कि वो साइंस ही थे. कभी हमें कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि चलते पानी में हाथ ना धोएं.
किसी चश्मे के पास गंदगी ना फैलाएं, जिससे आपके दाने निकल जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। इस तरह से हमें एक टीचिंग मिलती थी, जिस टीचिंग का मकसद था कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने का। बहुत सारे इस तरह के हमारे पास मिसाल हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोगों के अल्फाज हैं, कहावत है। अगर हम उस पर फॉलो करें तो यकीनन ये हमारा जो आज हम इस जनरेशन जो हम जी रहे हैं, हम दूसरे तक इसको पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। आज आप देखते हैं कि आज के दिन हमें ये मैसेज भी देना बड़ा अच्छा लगेगा कि आज लद्दाख कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इससे न सिर्फ इंसान बल्कि हमारे बाकी के जो सीधा ऑक्सीजन लेते हैं उन पे भी इसका एक असर दिखेगा। और आप देखते हैं कि जो हमारे आसपास में जिस तरह के पेड़ हैं, कल तक हम इन पेड़ पे गुजारा करते थे कि हम अपने खुराक जो हमारे खाना पकाना हम लकड़ियों से इस्तेमाल करते थे और हम इसमें पानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो आज कौंसल अपने एक स्कीम लाके हम चाहते हैं कि हर घर में सोलराइज हमें वाटर हीटर हो, ताकि कुछ लीटर जो पानी हमें इस्तेमाल करने के लिए होता है वो कुदरती जो धूप के ज़रिए गर्म रहे, और एक तो हमारे माहौल में कार्बन की जो मकदार है वो भी कम हो, और साथ ही साथ इन पेड़ पौधों पे भी असर ना हो जिसका किसी और का भी हक बनता है।